Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture number 25. But before that, let's see what we did in the last lecture. So in the last lecture, we were discussing about a few theories of management evolution, and then we talked about a few theories of motivation, in which we had Maslow's hierarchy, then X and Y theory, and then organization types, which was actually Z theory, and we had a comparison between the Japanese and the American organizations, and then we talked about the Hawthorne's effect and TQM, total quality management, hygiene factors, and then we talked about the three needs theory, and in the end we talked about the equity theory. In the last lecture we actually started that how industrial revolution started. And people before that used to work in their homes as we call it cottage industry, and then a few entrepreneurs, they started establishing a few places where all the workers used to come and work there. And before that, before the advent of those industries, people used to work at homes and everybody was self-employed and there was no need of managers. But when they started coming to industries, the need of the managers actually arise. And then we needed these manager skills. And then we talked about the time and motion studies, in which one of the scientific management scientists, what he did is that he compared the time of different motions and he studied the motions of the workers. And then he calculated the one best way of doing single task. And then he went on saying that this one best way should be taught to almost all the workers, and every worker who comes in the organization should be trained, and he or she should be selected on the basis of the relevancy of the education and the skills. कि जिस किस्म की उसके पास skills हों उसी चीज़ के लिए उसको hire किया जाए. Then we talked about the Maslow's hierarchy of need, जिसमें हमने बात की कि 5 किस्म की जो है वो नीड्स हैं, एंड एक किस्म की नीड जो बेसिक नीड है वो फुलफिल करने के बाद नेक्स्ट नीड जो है, नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड, वो मोटिवेटर बनता है, अदरवाइज मोटिवेटर नहीं बनता. जिसमें हमने बात की कि बेसिक नीड्स हैं, देन सिक्योरिटी नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, सेल्फ एस्टीम है, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. तो हमने कहा कि अगर इंसान की बेसिक नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती, विच इज़ शेल्टर, फूड, क्लोथ, तो तब तक उसको सिक्योरिटी नीड्स की ज़रूरत नहीं होती, ना ही उनके लिए वो मोटिवेटर होते हैं. और जब सिक्योरिटी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं फिर वो सोशल नीड्स की तरफ देखता है, सोशल नीड्स सेटिस्फाई होती हैं तो फिर वो सेल्फ एस्टीम की तरफ एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ देखता है. तो मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किस लेवल की नीड जो है वो किस एम्प्लॉय की है. देन वी टॉक्ड अबाउट द थ्योरी एक्स एंड वाई. हमने कहा कि मैनेजर्स का ये व्यू होता है, डिफरेंट मैनेजर्स हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट देयर एम्प्लॉयज. जो थ्योरी एक्स में बिलीव करते हैं, दे थिंक दैट पीपल एंड एम्प्लॉयज स्पेशली आर लेजी, दे डोंट वांट टू वर्क एंड दे डू नॉट हैव एनी एम्बिशन इन लाइफ. बट ऑन द अदर हैंड, जो थ्योरी वाई में बिलीव करने वाले लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, they say that people like to work, they feel satisfied after working, and they've got ambition, they are creative, they've got ideas. So actually theory X talks about those managers who think negative, kind of negative about their employees, and theory Y says that managers who believe in theory Y, they believe positive about their employees. कि employees जो हैं, एक side of the मैनेजर्स व्यू कहता है कि एम्प्लॉयज़ बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, दे डोंट वांट टू वर्क, और इनको फोर्स करके काम करवाना पड़ता है. एक साइड ऑफ द जो थ्योरी है विच इज़ द वाई पार्ट, वो व्यू में बिलीव करने वाले जो मैनेजर्स हैं वो समझते हैं कि लोग जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, खुद काम करना जानते हैं, सिर्फ उनको इनकरेज करने की, मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है. देन वी केम अप विद द थ्योरी जेड, जिसमें जापानीज एंड अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन किया, एंड देन द थ्योरी जी जो है उससे कंपेयर किया कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स
लेनी चाहिए अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन से और कौन कौन सी जापानीज ऑर्गेनाइजेशन से लेनी चाहिए. देन आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द हॉथॉर्न स्टडीज. हॉथॉर्न स्टडीज और हॉथॉर्न इफेक्ट क्या था कि उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बट वी टॉक्ड अबाउट ओनली वन एक्सपेरिमेंट विच वाज कि उन्होंने लाइटनिंग जो है उसका इफेक्ट कम कर दिया था, एक्सपेक्टिंग दैट प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज, कम हो जाएगी प्रोडक्टिविटी. बट हुआ क्या कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. एंड देन साइंटिस्ट थॉट कि लोगों की अटेंशन बढ़ने की वजह से, लाइट कम होने की वजह से लोगों की अटेंशन बढ़ी, अटेंशन बढ़ने की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. तो दैट मीन्स डिफरेंट चीज़ों को कम या ज़्यादा करने से प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आता है. ये हॉथॉर्न स्टडीज थी. देन वी टॉक्ड अबाउट TQM, डेमिंग के 14 पॉइंट्स उसमें हमने देखे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें उसने ज़्यादा एम्फसाइज ये किया कि आप कस्टमर के लिए और जो भी आपने चीज़ सेल करनी है उसमें क्वालिटी कॉन्शियस ज़्यादा हो, नॉट द क्वांटिटी कॉन्शियस. नंबर्स पे बिलीव ज़्यादा ना करें बल्कि क्वालिटी पे बिलीव करें. एंड देन ही गेव हिज 14 पॉइंट्स. उसने कहा कि अगर ये 14 पॉइंट्स लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव बेटर रिजल्ट्स. और फिर रिसर्च ये शो करती है कि जिन लोगों ने TQM को फॉलो किया है दे हैड बेटर रिजल्ट्स. देन वी टॉक्ड अबाउट द हाइजीन फैक्टर्स, जिसमें 4 किस्म की जो है वो सेटिस्फेक्शन को 4 किस्म में डिवाइड किया गया, जिसमें हमने कहा कि पहले लोग कहते थे यहाँ एक वर्कर डिससेटिस्फाइड होता है और सेटिस्फाइड होता है, बट इस थ्योरी के मुताबिक नो डिससेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन एंड नो सेटिस्फैक्शन. तो इसने इसको मजीद डिवाइड कर दिया और उस पर फिर इसने कहा कि हाइजीन फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं या उनको सेटिस्फाई करते हैं, बट उसमें ये याद रखना जरूरी है कि नो सेटिस्फैक्शन लेवल भी होता है और नो डिससेटिस्फैक्शन लेवल भी होता है. देन वी टॉक्ड अबाउट द 3 नीड्स थ्योरी ऑफ मैकलम, जिसमें हमने कहा कि थोड़ा बहुत जो है वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड के साथ मिलती जुलती है. नीड फॉर एफिलिएशन होती है, नीड फॉर पावर होती है, नीड फॉर जो सोशल आपकी सोसाइटी है उसकी. तो ये उससे मिलती जुलती जो थ्योरी थी. देन वी टॉक्ड अबाउट द इक्विटी थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, जिसमें हमने कहा कि लोग अपनी इनपुट को अपनी आउटपुट के साथ पहले तो कंपेयर करते हैं, एंड देन दे कंपेयर देयर इनपुट एंड देयर आउटपुट विद अदर पीपल. और जब वो कंपेयर करते हैं, some people they feel motivated and some people they feel demotivated. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कुछ डिफरेंट थ्योरीज कवर की थी. आज का टॉपिक हमारा जो है दैट इज इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. हम अपने सारे लेक्चर्स में ऑलमोस्ट एक्सपैट्रिएट के बारे में बात करते आए हैं, बट कौन से फिनोमिनाज हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डील करते हैं. लेट्स डिस्कस दोज फिनोमिनाज. ग्लोबलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन का जो इतना ज्यादा बढ़ने के रीजंस हैं वो क्या है, ताकि हम उस हिसाब से अपने HR के साथ इसको अलाइन करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस. कौन कौन सी फोर्सेस हैं? सबसे पहले ग्लोबल पॉपुलेशन चेंजेस. पॉपुलेशन में जो थ्रू आउट द ग्लोब चेंजेस आ रही हैं वो ग्लोबलाइजेशन को मजीद इम्प्रूव कर रही हैं, मजीद उसको एक्सपैंड कर रही हैं. बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन जो है वो हो रही है. देन ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली, कोई इंपोर्ट कर रहा है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है. कोई चीज एक किसी को अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उससे कुछ ना कुछ इंपोर्ट भी कर रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर नॉट फुली सफिशिएंट. कुछ प्रोडक्ट अगर एक कंट्री में अवेलेबल होती है तो दूसरी कंट्री में अवेलेबल नहीं होती. अगर दूसरी कंट्री में कुछ एक स्पेशल प्रोडक्ट अवेलेबल होती है तो वो दूसरी कंट्री तीसरी के पास नहीं होती. तो इसलिए एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस इकोनॉमिक बेस पे इनकी बहुत ज्यादा बन गई हुई है. देन रीजनल अलायंसेज इनकी हो गई हुई हैं, जिसमें हम NAFTA और यूरोपियन यूनियन वगैरह की बात करते हैं. और भी डिफरेंट अलायंसेज हैं जिसने जो ग्लोबलाइजेशन है उसको एक विलेज बना दिया पूरी दुनिया को, कि हर कंट्री जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. देन ग्लोबल कम्युनिकेशंस. आजकल ग्लोबल कम्युनिकेशन के डिफरेंट चैनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और इट्स वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद एनी कंट्री ऑलमोस्ट. तो उस इजीनेस ने ग्लोबलाइजेशन को और जो है वो बढ़ा दिया हुआ है.
देन रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, कि अब बिजनेसेस क्यों ग्रो कर रहे हैं, बिजनेसेस के ग्लोबल होने की वजह क्या है। ग्लोबल होने से मुराद यह है कि आपको अमेरिका की चीज़ पाकिस्तान में मिलती है, आपको जापानीज प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मिलती हैं, आपको हो सकता है कि किसी दूसरी कंट्री में पाकिस्तान की प्रोडक्ट मिल रही हो, चाइना की प्रोडक्ट्स आपको तकरीबन सारी दुनिया में मिलती हैं। तो ये सारा जो है ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। डिफरेंट कंपनीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए रीजंस उसके क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो गई है और बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से बिजनेसेस शिफ्ट हो रहे हैं ऑलमोस्ट हर जगह पे एक्सपैंड करके। मल्टीनेशनल्स और जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हर जगह पे ऑलमोस्ट ऑपरेट कर रही हैं। देन एग्जीक्यूटिव ग्लोबल कम्युनिकेशन, आपस में लोगों की रिगार्डिंग बिजनेस जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है, जिसकी वजह से बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। देन ट्रांसफ़र ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जिस तरह आपके पास इंटरनेट है एंड आपके पास ये डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिनकी वजह से बिजनेसेस ईजी हो गए हैं। अमेरिका में बैठ के पाकिस्तानी बिजनेसेस को लोग कंट्रोल कर रहे हैं, एक सिटी में बैठ के पूरे पाकिस्तान के जो बिजनेस है उसको कंट्रोल किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। देन ग्रोइंग ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड ये बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से बिजनेसेस जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। देन फॉरेन कंपटीशन, ऑब्वियसली हर कंट्री का या हर एटलीस्ट कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कोई ना कोई कंपटीशन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से बिजनेसेस इंक्रीज होते हैं, सारी दुनिया में बिजनेसेस ये वाले फैलते हैं। देन इम्प्रूव्ड एजुकेशन, एजुकेशन लेवल जो है वो इम्प्रूव हो गया है। देन आपके पास इमिग्रेशन है कि डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके सेटल होना शुरू हो गए हैं, इमिग्रेंट्स हैं वहाँ के, और उनकी जो है उस वजह से भी बिजनेस जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस शिफ्ट कर लेते हैं। देन बिजनेस ड्राइव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब और कौन सी चीजें इसको ड्राइव करती हैं, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन कॉस्ट, कॉस्ट को कम करने का प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट हर कंपनी के उस पर होता है, तो उसको कम करने से कंपटीशन इंक्रीज होता है और उसकी वजह से आपके जो बिजनेसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं। सर्च फॉर न्यू मार्केट, अब एक बिजनेस एक कंट्री में स्टार्ट होता है बट इट डज नॉट स्टे देयर ऑल द टाइम कि ठीक है एक ही जगह पे आपने काम कर लिया और वहां खत्म हो गया, नहीं, बिजनेसेस एक्सपैंड, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में बिजनेसेस एक्सपैंड करते रहते हैं, नई मार्केट्स आप ढूंढते रहते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन जिस जगह पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी, कंस्ट्रक्शन होती रहेगी, लोग रहना शुरू करेंगे, देयर विल बी न्यू मार्केट्स होंगी तो फिर लोग बिजनेसेस करने के लिए वहां आएंगे, तो उस वजह से भी ग्लोबलाइजेशन जो है उसको बूस्ट मिल रहा है। देन ग्रेटर कस्टमर डिमांड, कस्टमर जो है वो अब डिफरेंट किस्म की क्वालिटी, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स जो है वो डिमांड करता है, जिसकी वजह से बिजनेसेस को शिफ्ट होना पड़ता है। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स फ्री जोन्स बना देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करते हैं, तो लोग डिफरेंट कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी एस्टैब्लिशमेंट्स वहां बनाते हैं और बिजनेसेस एक्सपैंड करते रहते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, इजी हो जाता है आपको बिजनेस एक्सपैंड करना और आप फॉरेन से दूसरी कंट्री में जाके, दूसरी सिटी में जाके अपना बिजनेस आराम से चलाना शुरू कर देते हैं। देन वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन फ्लो, अगेन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन फ्लो, कि अब मीडिया है, आपके पास टेलीविजन है, आपके पास इंटरनेट है, दे हैव बिकम सो एफिशिएंट कि आपको विद इन सेकेंड्स हर चीज जो है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उस वजह से भी बिजनेसेस जो है एक्सपैंड कर रहे हैं। देन इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस इन ट्रेडिंग ब्लॉक्स, डिफरेंट ट्रेडिंग ब्लॉक्स बना दिए हुए हैं कि कौन सी कंट्री का कोटा जो है वो किस कंट्री के साथ कितना होगा और उस हिसाब से जो है वो ब्लॉक्स में ट्रेड होती है, उसकी वजह से भी बिजनेसेस जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं। देन कल्चरल इंटीग्रेशन, कि डिफरेंट कल्चर्स का आपस में मिक्स होना शुरू हो गया है, पहले डिस्टिंक्ट कल्चर्स होते थे, अब इंटीग्रेशन होना शुरू हो गई हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलके एक नए कल्चर्स को जो है ना वो बना रहे हैं। तो देन हाईली एजुकेटेड वर्कफोर्स जो है आपकी वर्ल्ड वाइड,
डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स हो गई है और एजुकेटेड है, देन दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। देन डिक्रीज्ड ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स जो है वो ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट, उसकी वजह से भी बिजनेसेस इजीली ट्रेड कर सकते हैं, तो एक्सपैंड कर रहे हैं। देन ई कॉमर्स का आ गया हुआ कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉनिकली जो आपकी सारी कॉमर्स है वो ऑपरेट कर रही है और उसकी वजह से भी आपके बिजनेसेस जो हैं वो ग्लोबल हो रहे हैं। नाउ रोल ऑफ HR मैनेजर्स व्हेन फर्म्स गो इंटरनेशनल। अब हमारा जो HR है, HR किस तरीके से ग्लोबल फर्म्स को, या जब फर्म्स ने ग्लोबल होना होता है मींस कि दे हैव टू शिफ्ट और दे हैव टू ऑपरेट इन अदर कंट्रीज, तो HR, हाउ HR कैन हेल्प। Once decision is made to go international, the task of HR manager is to implement that decision. अगर एक दफ़ा ये डिसाइड हो गया है तो फिर HR मैनेजर को चाहिए कि वो अपना काम शुरू कर दे और इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे। To convert the strategic plan into action and get on with whatever needs to be done to achieve the international vision and targeted objectives. एम्प्लॉयज़ की फॉर्म में जैसे ही आपका बिजनेस जो है वो शिफ्ट होता है तो HR को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना शुरू कर दे, लोकेट करना शुरू कर दे, आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे, रिक्रूट करना शुरू कर दे, डेवलप करना शुरू कर दे। ये सारे काम जो है ये HR ने करने। एम्प्लॉय रिलेटेड जितने काम है HR की अपनी विजन होगी तो होंगे, अदरवाइज कंपनीज इंटरनेशनल होंगी बट एम्प्लॉयज़ रेडी नहीं होंगे तो फिर फेलियर में भी फेस करना पड़े। तो HR का रोल जो है वो इसमें बहुत स्ट्रेटेजिक है। नाउ इंटरनेशनल HRM कंसर्न्स क्या है मेन, जो नीड फॉर इंटरनेशनल HRM प्रोफेशनल है कि किस किस किस्म के इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स आपको चाहिए और उसमें मेन कंसर्न्स क्या हैं आपके। सबसे पहले लेबर रिलेशंस। लेबर रिलेशंस आपके लॉज हैं हर कंट्री के, जो ऑब्वियसली हर कंट्री के स्टैट्यूट्स के मुताबिक, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उनके लेबर लॉज के मुताबिक दे आर डिफरेंट। अब डिफरेंट हैं तो एटलीस्ट HR मैनेजर और HR पीपल दे शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस एंड देन दे शुड इनकलकेट द डिफरेंसेस इन इवन एम्प्लॉयज माइंड्स, क्योंकि एम्प्लॉयज को भी पता चलेगा कि क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से लेजिस्लेशन जो है उनकी चेंज है एज फार एज लेबर लॉज आर कंसर्न, तो फिर वो उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। और वैसे भी जब इंटरनेशनल आपने होना होता है, व्हेन यू हैव टू गो इंटरनेशनल, यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स बिकॉज इन लॉज के मुताबिक आप ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी अनेबल टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन। देन स्टाफिंग है। स्टाफिंग में क्या आता है, फाइंडिंग द बेस्ट लो कॉस्ट एम्प्लॉय एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जब आप इंटरनेशनल हो रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयज को भी फाइंड करना पड़ता है, अच्छे एम्प्लॉयज को, बेस्ट को, और एट लो कॉस्ट, कि कम से कम पैसे में आप अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय जो है उसको आप हायर करें। एंड देन द थर्ड कंसर्न इज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, जो अभी मैंने बात की कि ट्रेनिंग करें, डेवलपमेंट करें उनकी। इंश्योरिंग मैनेजमेंट ग्रुप हैज द नॉलेज एंड एबिलिटी टू ऑपरेट इफेक्टिवली इन द इंटरनेशनल अरीना। जब आप इंटरनेशनल मार्केट्स में मूव कर रहे हो, आपके पास अपनी मैनेजमेंट की स्किल्स क्या इंटरनेशनल लेवल की हैं? अगर इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, देन यू हैव टू ट्रेन योर एम्प्लॉयज, डेवलप देम, टीच देम, एंड डिफरेंट ट्रेनिंग्स उनको दें, लैंग्वेज की ट्रेनिंग दें, लीगल ट्रेनिंग दें, एंड देन मैनेजमेंट स्किल्स की ट्रेनिंग दें। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जापानीज प्रैक्टिसेस जो ऑर्गेनाइजेशन में कम्प्लीटली डिफरेंट है और अमेरिकन कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो अब जब जो कंट्री है उसने जापान में जाना होगा या अमेरिका में जाना होगा, दिल हैव टू सी द डिफरेंसेस एंड डेवलप देयर एग्जीक्यूटिव्स अकॉर्डिंगली। ये बहुत ज़रूरी है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल HR मैनेजमेंट। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो ग्लोबल HRM को अफेक्ट करते हैं, कि आपने जब ग्लोबली ह्यूमन रिसोर्स को अपनी को मैनेज करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उनको देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल फैक्टर्स, बिकॉज हर कंट्री की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, सिचुएशन है, वो डिफरेंट होती है। एंड देन द इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेट सपोज आपकी करेंसी जो है इट इज़ डिफरेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज।
अब उसमें कॉम्पनसेशन में डिफरेंस आ जाएगा, देन उसके आपके बेनिफिट्स में डिफरेंस आ जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। देन कल्चर है आपका, कल्चर में ऑब्वियसली लैंग्वेजेस आ जाती हैं, आपकी वैल्यूज़ आ जाती हैं, नॉर्म्स आ जाते हैं, कल्चरल इवेंट्स आ जाते हैं, फेस्टिवल्स आ जाते हैं। ये सब अगर आपको पता होंगे देन यू विल बी एबल टू मैनेज योर एम्प्लॉयज़ प्रॉपर्ली, अदरवाइज मिस मैच हो जाएगा, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी। देन लीगल कंसर्न्स हैं, बिजनेस जो आपका लॉ है वो क्या कहता है, मर्केंटाइल लॉ जो है वो किस तरीके से हर कंट्री में डिफरेंट है। तो इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को जहन में रखना पड़ता है बिफोर यू गो फॉर ग्लोबल HR मैनेजमेंट। नाउ ट्रेडिशनल एक्सपैट्रिएट्स वर्कफोर्स। अब हमने एक्सपैट्रिएट्स की तो बात करते रहे, लेकिन डिफरेंट किस्म के एक्सपैट्रिएट्स हमारे पास होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके से डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। डिफरेंट टर्म्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल एक्सपैट्रिएट्स, वो क्या होते हैं, ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड, सिलेक्टेड फॉर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। एक तो ये एक्सपीरियंस्ड होते हैं, दे आर नॉलेजेबल, ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड। जब भी इनको हम असाइनमेंट देते हैं, फॉरेन असाइनमेंट, इंटरनेशनल, दे आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। कहते हैं कि इनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, दैट इज व्हाई वी शुड सिलेक्ट देम फॉर एन इंटरनेशनल असाइनमेंट। देन इंटरनेशनल केडर, इंडिविजुअल्स हु मूव फ्रॉम वन असाइनमेंट टू अनदर। ये एक असाइनमेंट से दूसरी असाइनमेंट पे मूव करते रहते हैं टाइम टू टाइम। दे डू नॉट स्टे इन वन कंट्री, दे हैव टू मूव फ्रॉम कंट्री टू कंट्री फॉर different assignments. And then we have permanent expatriates. Permanent expatriate कौन है? Employees who are permanently assigned to overseas location. जो permanently आप उसको shift कर देते हैं दूसरी जगह पे, and it doesn't have the time limit. अगर तो आपने assignment ये दी कि 3 years की आपकी assignment है, after 3 years you are going to come back, then permanent नहीं होता. But if you said कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है दैट इज गोइंग टू बी परमानेंटली इन सम कंट्री, तो फिर आपने परमानेंट एक्सपैट्रिएट बना दिया। और फिर यंग एक्सपैट्रिएट्स क्या होते हैं, नीड्स एक्सपीरियंस एंड इज सेंट फॉर रोटेटिंग असाइनमेंट्स। एक्सपीरियंस की वजह से, इनको एक्सपीरियंस गेन करने की वजह से स्मॉल असाइनमेंट्स पे भेजा जाता है ताकि इनके पास एक्सपीरियंस आ जाए। टेम्परेरी जो एक्सपैट्रिएट्स हैं गोज ऑन शॉर्ट असाइनमेंट्स। अब ये डिफरेंस देखें कि परमानेंट में एम्प्लॉय गो फॉर परमानेंटली एंड इसमें टेम्परेरी में गो फॉर अ शॉर्ट असाइनमेंट। तो इस वजह से ये एक्सपैट्रिएट की कुछ टर्म्स हैं, जिसमें हम एक्सपैट्रिएट ट्रेनिंग की बात करेंगे। प्लेस्ड अब्रॉड फॉर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एज पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट। बहुत सारी कंपनीज ने अपने इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज बनाई हुई हैं। कुछ और टर्म्स हैं इसमें एक्सपैट्रिएट वर्कफोर्स में, विच इज एक्सपैट्रिएट ट्रेनिंग्स, जो क्या करते हैं, प्लेस्ड अब्रॉड फॉर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एज पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज इंस्टीट्यूशन। अब बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज भी इवन बनाई हुई हैं, वर्क असेसमेंट या वर्क ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, जहां वो अपने नए एम्प्लॉयज को, स्पेशली यंग एम्प्लॉयज को जिनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उनको वो उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं, सो दे लर्न द आर्ट ऑफ द बिजनेस। पर्टिकुलर जो है, अगर कोई लेट्स सपोज कुकिंग से रिलेटेड बिजनेस है तो दे हैव अ स्पेसिफिक वे ऑफ ऑपरेटिंग देयर मशीन्स एंड कुकिंग, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस में भेज देते हैं कि दे शुड हैव अ डिप्लोमा ऑफ 6 months 1 year। तो वो इस तरह के जो एक्सपैट्रिएट्स हैं जो आउटसाइड द कंट्री जाके अपनी ट्रेनिंग करके आते हैं, उनको हम एक्सपैट्रिएट ट्रेनिंग कह देते हैं। देन वर्चुअल एक्सपैट्रिएट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, द एक्सपैट्रिएट्स whose tasks on foreign assignments while staying in the home office. They are sitting in one office. Let's suppose they are sitting in Pakistan, but their work is for America. They represent some American company. Or their work is in Pakistan and they represent some Chinese company or maybe a Japanese company. तो इस तरीके से जो वर्चुअल होते हैं, जिनको एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह से जो है वो काम करना होता है, तो उसको हम वर्चुअल एक्सपैट्रिएट्स कह देते हैं। देन एम्प्लॉय कैटेगरीज। अब इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स में हम एम्प्लॉयज को कैटेगराइज करते हैं
बट ये नॉर्मली किस पे बेस कर रहा होता है, उनकी नेशनैलिटी पे। अभी हम बात करते हैं कि उनकी नेशनैलिटी कैसे उनको डिफर करती है एज पर देयर कैटेगरी। द 3 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एन इंटरनेशनल फर्म कौन कौन से होते हैं? होस्ट कंट्री नेशनल्स, देन द पेरेंट कंट्री नेशनल एंड देन द थर्ड कंट्री नेशनल। अब डिपेंड करता है कि अगर जिस ओरिजिन की कंपनी है, जिस कंट्री की कंपनी है, उसी कंट्री का अगर नेशनल भी होगा उसका एम्प्लॉई, तो वो पेरेंट कंट्री नेशनल होगा। अगर जिस कंट्री में ऑपरेट कर रही है और होम कंट्री वो उसकी नहीं है, पेरेंट कंट्री वो नहीं है, बट होस्ट कर रही है, जैसे अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हो, तो फिर पाकिस्तानी जो होगा ही इज गोइंग टू बी अ होस्ट कंट्री नेशनल। और थर्ड कंट्री नेशनल क्या है कि कंपनी अमेरिकन है, ऑपरेट पाकिस्तान में कर रही है, और जो एम्प्लॉई है ही इज फ्रॉम जापान, तो ये थर्ड कंट्री नेशनल हो जाएगा। तो 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। नाउ नेशनैलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज इज मेजर फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द पर्सन्स कैटेगरी। ऑब्वियसली जिस कंट्री का वो नेशनल होगा उस कंट्री के कंपैरिजन में देखा जाएगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन की पेरेंट जो कंट्री है वो कौन सी है, तो उससे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि वो होस्ट कंट्री नेशनल है, वो पेरेंट कंट्री नेशनल है जिसको हम होम कंट्री नेशनल भी कहते हैं, या वो थर्ड कंट्री नेशनल है। देन hence HRM is an interplay among human resource activities, type of employees and countries of operations। अब बहुत सारी चीज़ों का ये मिक्स होता है, बहुत सारी चीज़ों को ख्याल करना पड़ता है। पहले ये कि किस कंट्री से वो कंपनी बिलोंग करती है, फिर कैसा ह्यूमन रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, क्या एक्टिविटीज़ है वहाँ उस कंट्री की, प्लस द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ कि एम्प्लॉय जो है उसकी नेशनैलिटी क्या है। तो जो इसमें डिफरेंसेस होते हैं उनको क्लियर करना जो है और उनमें एडजस्टमेंट्स क्रिएट करना जो है वो HR मैनेजर का काम है। नाउ व्हाट इज एक्सपैट्रिएट? जैसे हमने अभी बात की कि एक्सपैट्रिएट्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। एन एम्प्लॉई हु इज वर्किंग एंड टेम्परेरीली रिजाइडिंग इन अ फॉरेन कंट्री, हम सिंपल लैंग्वेज में इसको ये कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल असाइनीज बाय सम फर्म्स, कुछ फर्म्स इनको इंटरनेशनल असाइनीज के नाम से भी बुला लेती हैं। ऑल 3 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज दैट इज पेरेंट कंट्री नेशनल, थर्ड कंट्री नेशनल एंड होस्ट कंट्री नेशनल आर एक्सपैट्रिएट्स। तीनों फॉर्म में, तीनों कैटेगरीज में जो लोग फॉल करते हैं दे आर कॉल्ड द एक्सपैट्रिएट्स। व्हाट इज इनपैट्रिएट? अब इनपैट्रिएट ऐसा एम्प्लॉई है जो होम कंट्री में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेट सपोज अगर अमेरिकन कंपनी है और पाकिस्तानी नेशनल है, तो अगर उसको होम कंट्री में अपॉइंट कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो वो इनपैट्रिएट हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ सब्सिडरी स्टाफ इनटू द पेरेंट कंपनी हेडक्वार्टर ऑपरेशंस, वो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट काम कर रहा होगा, तो उसको होम कंट्री में जो है वो अपॉइंट कर दीजिएगा, उसको हम इनपैट्रिएट कह देते हैं। नाउ ग्लोबल असाइनमेंट मैनेजमेंट साइकिल, जहां से आप एम्प्लॉय को स्टार्ट करते हैं वहीं से वो वापस फिर आ रहा होता है। बट द इशू इज कि HR शुड बी सो एफिशिएंट कि उसके पास ये सारे प्लान्स और सारा जो साइकिल है ये मेंटेन्ड हो। पहली बात क्या है? प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। सबसे पहला पार्ट जो है HR मैनेजर के लिए दैट इज कि उसकी ट्रेनिंग करवाए और ओरिएंटेशन कराए। प्री डिपार्चर, बिफोर ही लीव्स फॉर सम अदर कंट्री, उसकी ट्रेनिंग करवाएं। कौन सी? लैंग्वेज की ट्रेनिंग कराएं, हिस्ट्री उसको बताएं, कल्चर की ट्रेनिंग कराएं और डिफरेंट जो जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है उसकी ट्रेनिंग्स करवा के फिर उसको भेजें। अब एक्सपैट्रिएट जो है वो चला गया है दूसरी कंट्री में, और यहाँ क्या है? अराइवल एडजस्टमेंट इन होस्ट कंट्री, इसका ख्याल रखना पड़ता है कि जिस कंट्री में वो जा रहा है क्या उसके पास रेजिडेंस अवेलेबल होगी, क्या उसके पास उसकी फैमिली को एडजस्ट करने के लिए जो भी फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। देन कंटिन्यूइंग एम्प्लॉय सपोर्ट एंड डेवलपमेंट, ये नहीं है कि अगर आपको वो ऑर्गेनाइजेशन को एक दफा छोड़ के गया है असाइनमेंट के लिए तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी ट्रेनिंग, उसकी डेवलपमेंट, उसकी इंक्रीमेंट्स, उसकी कॉम्पनसेशन, उसके बेनिफिट्स,
उसका ख्याल रखना ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ दूसरी कंट्री में बैठे हुए भी उसका ख्याल करना चाहिए। देन रिपैट्रिएशन प्लानिंग एंड ट्रेनिंग। अब जब वो फिर वापस आ रहा होता है तो फिर उसको डिफरेंट ट्रेनिंग चाहिए होती है, बिकॉज इफ ही शी हैज स्पेंड लेट्स सपोज 3 years, मे बी 3 years में उसकी एडजस्टमेंट जो है उस कंट्री में प्रॉपर होगी, और अब जब रीएडजस्ट करना है अपनी कंट्री में तो अगेन ही माइट हैव सम प्रॉब्लम्स। तो रिपैट्रिएशन में रिटर्न टू होम कंट्री हो रहा होता है, और यहाँ रीअसाइनमेंट एंड रीएडजस्टमेंट करनी होती है कि आप उसके लिए आपने दोबारा कोई पोस्ट क्रिएट की है, और यू कैन आस्क हिम टू गो फॉर सम अदर असाइनमेंट, बट क्या आपके पास क्रिएटेड है, क्या आपके पास उसके लिए कोई जगह है होस्ट कंट्री में, या आपने उसके लिए कोई रिटायरमेंट प्लान बनाया हुआ है, या आपने उसके लिए गोल्डन शेक हैंड प्लान बनाया हुआ है, या उसके लिए एक और असाइनमेंट तैयार की हुई है। दिस शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड। अदरवाइज जब ये वापस आता है, हमने एक लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस भी किया था, डीमोटिवेट फील करता है और परफॉर्मेंस जो है इसकी डिक्रीज हो जाती है। एक तो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, दूसरा ये है कि जब उसको आते ही पोस्ट नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, then he or she will be frustrated and feel demotivated. Now, staffing the multinational enterprises, और उसमें किस तरीके से हम उनको रैंक करते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट जो है वो फिलॉसफीज होती हैं, डिफरेंट बिलीव्स होते हैं। उन बिलीव्स एंड फिलॉसफी पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का एम्प्लॉय जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ करते हैं, हायर करते हैं। स्टाफिंग द मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज एम्प्लॉय is also a difficult endeavor. Firms go through stages where they use, कौन से stages और क्या use करते हैं, ethnocentric staffing, जिसमें parent country national is almost exclusively seen, and then polycentric home country national जो है वो key positions पे होते हैं, जो host country है, host country national जो है वो key positions पे होते हैं, and then regiocentric staffing जो रीजनल बेसिस पे करते हैं, एंड देन जियोसेंट्रिक जिसमें आप तीनों को कंसिडर कर रहे होते हैं, इक्वल स्टेटस देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की, उस कंट्री की, उस फाउंडर की, उस सीईओ की क्या फिलॉसफी है। जब वो एक्सपैंड कर रहा है, व्हेन ही इज गोइंग इनटू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर कंट्रीज, तो किस तरीके से किस किस्म के लोग चाहे वो हायर करता है। नाउ ग्लोबल एम्प्लॉय सिलेक्शन फैक्टर्स। अब जब भी आपने एक प्रोडिक्ट करना होता है कि सक्सेसफुल एम्प्लॉय कौन सा होगा, जैसे हमने सिलेक्शन में बात की थी कि प्रोडिक्टर्स होते हैं हमारे पास। अब इंटरनेशनल सिलेक्शन और इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए जब हम पिक कर रहे होते हैं लोगों को, तो उसमें प्रोडिक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चरल एडजस्टमेंट, कि क्या वो एम्प्लॉय जो है वो कल्चरली एडजस्ट कर पाएगा दूसरी कंट्री में या नहीं, जिसमें कल्चरल अवेयरनेस है, कल्चरल अडेप्टेबिलिटी है, डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस है, एंड ग्लोबल एक्सपीरियंस है। क्या ये सारी चीजें आपका एक एम्प्लॉय कर सकता है? इफ यस, देन ही विल बी अ गुड मैच। एंड देन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिस्क टेकिंग है, देन इमोशनल स्टेबिलिटी है, एंड एम्बिग्विटी टॉलरेंस है, एंड फिजिकल स्ट्रेस को कोप अप कर सकता है। ये दूसरे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हैं तो ठीक है, अदरवाइज he might not be a very successful global employee. Then communication skills बहुत important है कि language capabilities कितनी है, learning capabilities कितनी है, non-verbal awareness कितनी है, coaching and listening skills कितनी अच्छी हैं, then conflict resolution abilities कितनी अच्छी हैं, ये भी देखनी पड़ती हैं। Then personal and family factors, personal life demands, अगर तो उसकी personal life बहुत demanding है, family life बहुत demanding है, then he might not be a very good match. बिकॉज अगर उसको आप अकेले को ट्रांसफर कर रहे हैं, नॉट द फैमिली, तो बिकॉज ऑफ द डिमांड्स फ्रॉम द फैमिली ही माइट नॉट बी एबल टू एडजस्ट प्रॉपरली। आगे हम फेलियर्स की बात करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि सबसे बड़ा रीजन जो है फेलियर्स का, एक्सपैट्रिएट्स का, वो फैमिली प्रॉब्लम्स ही बनती हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है उसके पास, टेक्निकल एबिलिटी और जॉब रिलेटेड स्किल्स जो हैं वो है या नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर ये पांचों फैक्टर्स जो हैं इन पे कोई एम्प्लॉय पूरा उतरता है तो देन ही कैन बिकम अ सक्सेसफुल ग्लोबल एम्प्लॉय, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अदरवाइज उसी हिसाब से एडजस्टमेंट में और डिफरेंट चीजों में मसले आ सकते हैं। एक्सपैट्रिएट फेलियर,
अब जो एक्सपैट्रिएट्स का फेलियर है वो किस वजह से होता है? फेलियर इज फ्रीक्वेंट. इट अकर्स when the assignee returns permanently or when performance does not meet expectations. किस किस फॉर्म में फेलियर आ जाता है? एक तो वो अपनी असाइनमेंट को छोड़ के आ जाता है दूसरी कंट्री में, बिफोर फिनिशिंग इट, बिफोर कंप्लीटिंग इट, परमानेंटली वापस आ जाता है, और रहता उसी कंट्री में, बट द परफॉर्मेंस गोज डाउन. इट इज नॉट एज द ऑर्गेनाइजेशन वाज एक्सपेक्टिंग. अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही थी कि 90% इसकी परफॉर्मेंस रहेगी और वहां जाके 30 या 40% है, तो दिस इज अ वेरी लो परफॉर्मेंस. यहाँ वो वापस ही आ जाता है कंट्री में अपनी, तब भी इशू है. तो ये फेलियर है. रेट्स रेंज फ्रॉम 15 to 80% फेलियर का. द हाइएस्ट फेलियर रेट इज फॉर यूनाइटेड स्टेट नेशनल्स. जो यूएसए से लोग जाते हैं उनका रेट सबसे ज्यादा एक्सपैट्रिएट्स का फेलियर है. इसमें एक और रीजन ये भी है कि ज्यादातर एक्सपैट्रिएट्स होते ही डेवलप्ड कंट्रीज के हैं, तो उसमें यूएस के एक्सपैट्रिएट्स भी ज्यादा होंगे, इसलिए फेलियर रेट को भी हम ज्यादा कह सकते हैं. नाउ फेलियर कॉस्ट्स. रिसर्च कहती है द कॉस्ट फॉर फेलियर आर सब्सटेंशियल, रेंजिंग फ्रॉम 55,000 to 150,000 पर फेलियर इन डायरेक्ट कॉस्ट्स. जो डायरेक्ट कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ती है विदाउट द ट्रेनिंग्स और ये बाकी जो चीजें, जो इंटेंजिबल चीजें हैं, दैट इज 55,000 to 150,000. द रियल कॉस्ट इफ हायर एज इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन एंड रिप्लेसमेंट, ट्रेनिंग, प्रेपरेशन, मूविंग, लॉस्ट रेवेन्यूज, लॉस्ट रेपुटेशंस, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज एंड लॉस्ट फ्यूचर वैल्यूज. ये जो इंटेंजिबल वैल्यूज आपकी जो है वो लॉस होती हैं, जिनका नुकसान होता है, दे आर not included in this 55,000 to 150,000. तो इसलिए बहुत सारी जो है फेलियर की बहुत हैवी कॉस्ट होती हैं. रीजंस क्या है? फेलियर रीजंस. द रीजंस फॉर फेलियर आर न्यूमरस. देयर आर सो मेनी रीजंस. दे इंक्लूड स्पाउस अनहैप्पीनेस, इनएबिलिटी टू एडजस्ट ही नहीं हो पाते, आपको लैंग्वेज की समझ नहीं आती, मे बी आपको जो है वो डाइट के इश्यूज हो जाते हैं, मे बी आपको जो है वो रिलीजन के इश्यूज हो जाते हैं, एडजस्टमेंट नहीं होती. देन इमेच्योरिटी. अ फ्यू पीपल आर टू इमेच्योर टू इवन लिव विद सम अदर पीपल, या कल्चर को अडेप्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. देन इनएबिलिटी टू कोप विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इंटरनेशनल असाइनमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल इज लिटिल हायर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर अलोन at that place, at that country. तो उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल इज टू हाई और कई दफा लोग नहीं ले सकते. देन स्ट्रेस या बर्न आउट और स्ट्रेस हो जाते हैं. देन लैक ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज, कि आपके पास वो कॉम्पिटेंसीज नहीं होती जो रिक्वायर्ड होती हैं इंटरनेशनल असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, तब भी आपका जो है वो फेलियर हो सकता है. लैक ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. Some people, they don't feel like going abroad, but if you send them, they won't feel motivated, they'll be demotivated, और उससे उनका फेलियर जो है उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. Now, a graphical representation of causes of expatriate, the source is already given. Now, सबसे ज्यादा जो हमारे पास है, जो 33% जो बन रहा है हमारे पास परसेंटेज, that is spouse partner satisfaction. Because sometimes आपको जो spouse है he or she is unhappy because he or she is alone. Sometimes mothers हैं, they have to look after the children alone, then they're not happy, और वो reason बनता है expatriates का failure का वापस आने का permanently. Then family concerns, especially in cultures like ours, there are so many family responsibilities जो आपको साथ लेके चलनी पड़ती हैं. बट इफ यू गो फॉर सम इंटरनेशनल असाइनमेंट, यू विल ऑलवेज बी हैमर्ड बाय दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू माइट कम बैक और यू शो योर प्रोडक्टिविटी विच इज फॉलिंग. देन एबिलिटी टू अडेप्ट. आपसे कल्चर अडेप्ट नहीं होता, आपसे लैंग्वेज अडेप्ट नहीं होती, आपसे उस जगह की जो भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप में अडेप्ट नहीं हो सकती, वो रीजन बन सकता है. देन कैंडिडेट सिलेक्शन. कई दफा कैंडिडेट सिलेक्शन करने में इशू ऐसा आ जाता है कि आपसे सही कैंडिडेट की सिलेक्शन नहीं होती. जॉब फेल्स टू मीट एक्सपेक्टेशंस. कैंडिडेट कुछ और सोच के गया होता है, वहां जॉब की नेचर कुछ और होती है,
तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन जॉब परफॉर्मेंस, जॉब की परफॉर्मेंस जो है वो भी ओवरऑल लो हो तो लोग डीमोटिवेट होके कंट्रीज में वापस आ जाते हैं। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज इंटरनेशनल असाइनमेंट सिर्फ आप डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं जाते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गो फॉर अंडर डेवलप्ड और जो स्मॉल कंट्रीज हैं उन पे जाते हैं। देन यू सफ़र फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपको मे बी वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती, मे बी आपको वो फूड अवेलेबल नहीं होता, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र करती है एंड देन यू डोंट सर्वाइव देयर। देन रिम्यूनरेशन डिससेटिस्फैक्शन, कई दफ़ा आपको जो सैलरीज मिल रही होती, वेजेस मिल रही होती, ये अच्छी नहीं होती एंड देन यू डोंट फील लाइक वर्किंग एनी मोर। देन परसेंटेज रिफ्लेक्ट ऑफन कॉस्ट फेलियर, रिस्पॉन्सेज ओनली, मोर देन वन आंसर कुड बी गिवन। तो इसलिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना ही परसेंटेज होगा, इट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ एक्सपैट्रिएट एडजस्टमेंट स्टेजेस, अब जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एम्प्लॉय को शिफ्ट करते हैं तो ही माइट गो थ्रू सर्टन फेजेस। कौन कौन से फेजेस होते हैं, अब यहाँ एक ग्राफ में आप ये देखें कि ये लेवल ऑफ इमोशंस है, ये कैसे चेंज हो रहे हैं, और यहाँ आपके पास टाइम है इन मंथ्स, 1 2 3 4 ये मंथ्स में आपके पास टाइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, लेवल ऑफ इमोशंस या लेवल ऑफ जो आपकी इवन परफॉर्मेंस है वो भी इसी तरीके से डिप खा रही होती है। देन अच्छा, यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, दिस इज अ हनीमून पीरियड, इमोशनली यू आर एट योर बेस्ट, बहुत हाई इमोशंस होते हैं और आप हनीमून पीरियड उसको हम कहते हैं कि आप उसमें होते हैं और यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू सम अदर कंट्री, और देन एकदम से आपका जो है वो फॉल कर, यू फॉल इमोशनली एंड यू गो टू द लोएस्ट लेवल, जब आपको कल्चरल शॉक्स लगते हैं, डिफरेंसेस आप देखते हो, और हॉस्टिलिटी, क्रिटिसिज्म, स्टीरियोटाइपिंग, आइसोलेशन एंड कल्चरल शॉक्स। कल्चरल शॉक्स लगते हैं तो इमोशनली यू गो एट द बॉटम, बहुत इमोशनली यू आर वीक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेज, आपको पता चलती है, होस्ट कंट्री अंडरस्टैंडिंग होती है, इंक्रीज नेटवर्क होता है, इंक्रीज कंफर्ट लेवल होता है, फ्रेंड्स आपके बन रहे होते हैं, आपको चीज़ों की समझ आ रही होती है, लैंग्वेज समझ आ रही होती है, देन यू स्टार्ट मूविंग एंड देन इन द एंड आफ्टर लाइक 8 months यू स्टार्ट एडजस्टिंग, एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, इंजॉयमेंट आ जाती है, या आप यहाँ आपको ये पता चल रहा होता है कि नाउ यू आर सेटलिंग डाउन। नॉर्मली people leave from here. Most of the failures they occur when people go and hit this bottom of the emotional level. और यहाँ लोग जो है they cannot tolerate a learning stage पे नहीं जाते। Once you are on the road of the learning stage, फिर आपको चीज़ें easy होना शुरू हो जाती हैं, then you move on to the adjustment phase. तो इस तरीके से आपके expatriate जो हैं वो move करते हैं from higher emotions to lower and then to the adjustment. Now, difference between domestic HRM and international HRM. More HRM activities होती हैं, the need for broader perspective होता है। अब HR को जब IHRM international HRM का सोचे तो he needs to be to be having a broader perspective, ज़्यादा बड़ी सोच रखनी चाहिए। Then more involvement in employees' personal lives. International HRM में you have to look at the employee's personal life. If he's married and if he has got parents and children, you have to take care of them. But local HR जो हमारी है, जो within your own country होती है, within your own state होती है, उसमें you're not very much bothered about the personal life. Changes in emphasis at the workforce, mix of expatriate and local varies. अब जिस जगह पे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंट्री में एक्सपैट्रिएट जाए काम कर रहा है, वहाँ के लोकल्स भी होंगे, उनके साथ मिक्स करना जो है दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट। अदरवाइज लोकल जो है वहाँ आपके पास नॉर्मली मेजॉरिटी लोकल्स की होती है एंड इट इज़ ईजी टू एडजस्ट। रिस्क एक्सपोजर, रिस्क लेना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। देन ब्रॉडर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, इंटरनेशनल HRM में ब्रॉडर एक्सटर्नल, जैसे हमने बात की कि पॉलिटिक्स कर रही होती है, कल्चर कर रहा होता है, टेक्नोलॉजी कर रही होती है, लैंग्वेज कर रही होती है,
ये सारे जो हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन पे भी प्लस आपकी एक्सपैट्रिएट पे भी। देन इंटरनेशनल टैक्सेशंस डिफरेंट होती हैं, इनकम टैक्स डिफरेंट होगा और बाकी जितने आपके जो प्रॉपर्टी टैक्स है डिफरेंट, ये दे ऑल विल बी डिफरेंट, यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। देन इंटरनेशनल रीलोकेशन का प्रॉब्लम होता है, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो किस जगह पे ठीक रहना है, क्या वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। देन ओरिएंटेशन का इशू आ सकता है कि ओरिएंटेशन आपकी प्रॉपर हुई है या नहीं हुई। देन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ एक्सपैट्रिएट्स आ सकता है कि वह वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे एडजस्ट हो रहा है दूसरी कंट्री में। देन होस्ट गवर्नमेंट रिलेशनशिप, अगर होस्ट कंट्री के पेरेंट कंट्री के दोनों की गवर्नमेंट के रिलेशनशिप अच्छे हैं देन इट विल बी इजियर टू एडजस्ट इन दैट कंट्री, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट्स में जो है वो क्लैशेस हैं तो फिर इवन द पब्लिक इज गोइंग टू हैव अ फ्यू क्लैशेस। लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ आपको अगर दूसरी लैंग्वेज में मिल रही है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, अगर वो होंगी तो यू विल बी एडजस्टेड इजीली एंड हैप्पीली, अदरवाइज आपको फिर प्रॉब्लम होएगी। द नीड फॉर अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, अब जरूरत क्या है हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की। डिजाइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रोग्राम फॉर मोर देन वन नेशनल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, अगर तो आपने अपनी कंट्री में एक प्रोग्राम चलाना है वो तो आप एक ही लैंग्वेज में एक ही तरह का चलाओगे एंड सब पे इम्पैक्ट आ जाएगा उसका। बट इफ इट्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट एक्सपैट्रिएट्स तो उसके लिए आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की जरूरत है। A broader, more international perspective on expatriate benefits would endorse the view that all expatriates employees regardless of nationality should receive a foreign service or expatriates premium when working in foreign locations. अब जिस भी nationality के वो हैं बट आपको ये करना है कि आपको उनको एक expatriate premium देना है कि let's suppose अगर यहाँ वो 1000 रुपीज दे रहे थे and if the countries are almost the same तो आप उसको 1100, 1200, 1300 देंगे बिकॉज ऑफ द एक्सपैट्रिएट प्रीमियम। देन कॉम्प्लेक्स इक्विटी इशू अराइज व्हेन एम्प्लॉइज ऑफ वेरियस नेशनलिटीज वर्क टुगेदर। ऑब्वियसली जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर काम करते हो आपकी इनपुट और आपकी आउटपुट और उसी तरह उस कंट्री के नेशनल जो है उनकी इनपुट एंड आउटपुट पे आप कंपैरिजन करते हो। उस कंपैरिजन में समटाइम्स यू फील मोटिवेटेड एंड समटाइम्स यू डोंट फील मोटिवेटेड, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए वी शुड हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल एचआरएम। नाउ 3 मेजर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल एचआरएम। कौन से ऐसे 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल एचआरएम में चेंजेस आती हैं। द फर्स्ट इज टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब किस टाइप की गवर्नमेंट है, लेट्स सपोज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट है उनके डिफरेंट लॉज होते हैं। डिफरेंट लॉज जो हैं वो आपके बिजनेस को, आपकी सर्विस को, आपकी लेबर को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस पे एक तो डिपेंड करेगा किस किस्म की गवर्नमेंट है और किस किस्म के लॉज हैं उनके। देन स्टेट ऑफ इकोनॉमी, अगर अच्छी इकोनॉमी है तो उसमें मे बी एडजस्टमेंट ज़रा इजी हो जाए, आपको फैसिलिटीज ज़्यादा होंगी, कॉम्पनसेशन ज़्यादा होगी। बट अगर इकोनॉमिकली वो कंट्री ठीक नहीं है तो हो सकता है एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको फैसिलिटीज में भी प्रॉब्लम हो। और दूसरा मतलब मेन जो है जो डिपेंडेंट है इंटरनेशनल एचआरएम को चेंज करने में वो है स्टेट ऑफ इकोनॉमी। देन जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इन ईच ऑफ द वेरियस होस्ट कंट्रीज इन विच द मल्टीनेशनल ऑपरेट्स। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि किस किस्म की प्रैक्टिसेस जो हैं वो एक्सेप्टेड हैं बिजनेस वर्ल्ड में, बिकॉज हर कंट्री में there are different type of workforce, different type of laws, different type of working styles, different type of leadership styles। जैसे हमने कंपैरिजन किया था जापानीज एंड अमेरिकन फर्म्स का थ्योरी जेड में, तो आपने देखा था कि both of them are doing very good, but the issue is that one government and one kind of employees and one kind of organizations they believe in totally different thing and the other they believe in totally different thing। तो ये प्रैक्टिसेस पे बहुत डिपेंड करता है कि कितनी प्रैक्टिसेस जो हैं वो अच्छी हैं या कितनी अच्छी नहीं है। उस हिसाब से कंट्री के जो इंटरनेशनल एचआरएम के लॉज हैं, इंटरनेशनल एचआरएम की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी। नाउ व्हाट्स
इन इंटरनेशनल HRM, द समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की कि इंटरनेशनल HRM जो है वो ग्रो क्यों कर रही है। तो हमने कहा कि कम्युनिकेशन हो रही है, ट्रेड बैरियर्स ख़त्म हो गए हैं, ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रही है, एजुकेटेड हैं लोग, और एक्सपैट्रिएट्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को बिजनेसेस को एक्सपैंड करना पड़ता है। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए रीजंस क्या हैं, फोर्सेस क्या हैं कि कस्टमर डिमांड करता है, एंड देन आपके पास कम्युनिकेशन हो गई है, फिर लोगों की डिमांड्स जो हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं, दे नॉट क्वांटिटी कॉन्शियस एनी मोर। फिर उस पर हमने बात की कि इंटरनेशनल कंसर्न्स क्या होते हैं। तो उसमें हमने कहा कि एक तो लेबर लॉज वेरी करते हैं, फिर वहाँ का कल्चर वेरी करता है, वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वेरी करता है। देन वी टॉक्ड अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोबल HR मैनेजमेंट, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो HR मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। फिर हमने बात की कुछ ट्रेडिशनल एक्सपैट्रिएट्स की, कुछ इंटरनेशनल केडर्स की। हमने कहा ट्रेडिशनल जो एक्सपैट्रिएट्स होते हैं वो ओल्डर वर्कर होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, और उनको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया हमारा एक्सपीरियंस की बेस पे होता है। इंटरनेशनल केडर का हमने कहा कि इंडिविजुअल्स हु मूव फ्रॉम वन असाइनमेंट टू अनदर, असाइनमेंट से असाइनमेंट मूव करते रहते हैं, कंट्री से कंट्री मूव करते रहते हैं। देन परमानेंट एक्सपैट्रिएट्स को हमने कहा कि जिनको परमानेंटली रिलोकेट कर देते हैं, परमानेंटली जॉब्स दे देते हैं दूसरी कंट्रीज में, while they belong to some other country, their nationality is of some other country, but they are assigned work in some other country permanently, तो उनको परमानेंट कह देते हैं। फिर यंग एक्सपैट्रिएट्स की हमने बात की कि उसमें जो है वो दे नीड एक्सपीरियंस, एंड उनको एक्सपीरियंस की वजह से रिलोकेट किया जाता है। दैन टेम्पररी एक्सपैट्रिएट की बात की कि टेम्पररी वो होता है जो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए असाइनमेंट दी और फिर उसको वापस बुला लिया। फिर हमने उसमें 3 कैटेगरीज पढ़ी कि 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने कहा कि होस्ट कंट्री नेशनल हो सकता है। होस्ट कंट्री नेशनल क्या है कि अमेरिकन फर्म है, वर्किंग इन पाकिस्तान, और पाकिस्तानी एम्प्लॉय उसमें काम कर रहा है, तो वो होस्ट कंट्री नेशनल है, बिकॉज पाकिस्तानी जो है वो नेशनल है पाकिस्तान का, और उस कंपनी को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो होस्ट कंट्री नेशनल हो जाता है। देन पेरेंट कंट्री नेशनल, कि अगर अमेरिकन फर्म में अमेरिकन काम कर रहा है तो। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द थर्ड कंट्री नेशनल, कि वो ना होस्ट कंट्री का होता है ना पेरेंट कंट्री का होता है, वो थर्ड कंट्री से आ जाता है। ग्लोबल एम्प्लॉय सिलेक्शन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उसमें हमने कहा कि वो कल्चर के साथ एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, पर्सनल फैक्टर्स उसके कैसे हैं, फैमिली डिमांडिंग है कि नहीं है। एंड देन वी मूव ऑन टू टॉक अबाउट द एक्सपैट्रिएट फेलियर, और उसमें हमने कहा कि किस कौन कौन से मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से एक्सपैट्रिएट जो है वो फेलियर होता है। और उसमें हमने देखा कि स्पाउस की अनहैप्पीनेस थी, देन फैमिली डिमांड्स थी, फिर लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी थी, और फिर इस तरीके से बहुत सारे जो रीजंस थे। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट एक्सपैट्रिएट एडजस्टमेंट स्टेजेस, जिसमें हमने कहा कि अराउंड 8 मंथ्स जो हैं उसमें एक्सपैट्रिएट एडजस्ट होता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वह हनीमून पीरियड पे होता है जो इमोशनली बहुत हाई होता है, स्टेबल होता है, बट आफ्टर दैट ही फील्स अ कल्चरल शॉक, जिसमें इमोशनली वो बॉटम लाइन पे चला जाता है, एंड देन ही स्टार्ट्स लर्निंग, और फिर वो एडजस्टमेंट की तरफ आ जाता है। तो ये हमने आज सारा लेक्चर जो है उसमें चीज़ें कवर की। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।